I'm supposed to cover the anti-conversion laws. और एक एडवोकेट होने के नाते जो डे इन एंड डे आउट एंटी कन्वर्जन लॉज से डील कर रहे हैं और ऐसे केसेस को देख रहे हैं, I think it's very easy, like if I have to sum it up, if I have to just say in a nutshell what I see and what is my perception, or the team that I work with, our perception of the anti-conversion laws, the way they are in play on the ground in the country, is that they are an anathema to the Constitution. They cannot coexist. हमारे संवैधानिक मूल्यों, उसकी ईथॉस, उसके वैल्यूज, उसके मोरालिटी के साथ ये धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जो लव जिहाद लॉ है, कई नामों से, कई यूफेमिस्टिकली, कई तरीकों से उसको जाना जाता है, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट. बट दैट्स व्हाट वी आर सीइंग सिंस 1970 से ये लॉ है. लेकिन जिस तरीके से उसको वेपनाइज किया गया, जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया इन द लास्ट 3 to 4 years, इट्स अनबिलीवेबल. दे कॉल द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट्स, कुछ जगहों पे उसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बोला जाता है. बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं इसके बारे में रिफ्लेक्ट करता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये किसके राइट को प्रोटेक्ट करता है. Whose right is it trying to protect and who is it trying to punish? Yes, the stated objective has a lot of things that, fraudulently, forcefully, you shouldn't try to convert anyone. I think principally हम सब लोग उसके साथ हैं. No one disagrees on that. But stated objective से तो बहुत आगे हम लोग निकल गए हैं अभी. Now we have seen the law in play. We have seen how it has been utilized over all these years. Who are the victims? Who are the people who are at the forefront in trying to implement this law? So this question becomes very important when the judiciary, when the courts are examining the legitimacy of this law. क्या ये हमारे स्टैट्यूट बुक पे ये कानून रहना चाहिए या नहीं? जब इसको एग्जामिन करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चंस को जो कोर्ट को कंसिडर करना पड़ेगा वो ये है, ये किसके हक को बचा रहा है? Whose right is it trying to protect? And who is it trying to punish? I can tell you for a fact, and this is coming from experience, ये आम आदमी के, आम जनता के राइट को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा. The common Hindu, the common Sikh, the common Buddhist or the common Muslim is not the person who is being protected. या उनकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं वहां प्रोटेक्ट हो रही है. And I don't say this out of thin air. If you look at any of the complaints that are filed, इसमें जो FIR दर्ज होती हैं, कोर्ट के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को आप देखेंगे, उसके अंदर दिखेंगे जो लोग उन कंप्लेंट्स को फाइल करते हैं, जो केसेस रजिस्टर करते हैं, उनकी जो विचारधारा है, वो किस आइडियोलॉजी से आते हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट से आते हैं, उसके अंदर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है. एंड दे आर नॉट ऑर्डिनरी फोक्स. They are people who are polarized. They are people who have a certain bent of mind and who are thinking only on certain lines. It's not the ordinary person whose right to freedom of religion is being protected through these laws. अगर आप इसके आंकड़े देखें, एक्विटल्स के आंकड़े देखें, none of these cases, I am speaking more from my experience of dealing with the laws in which Christians are being prosecuted, ईसाई जो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, आप उसके आंकड़े देखिए, इसी साल में कम से कम 15 एक्विटल हुए हैं. Why is it that the state is unable to prosecute these cases and land at a conviction? Many of them we dealt with ourselves, by ourselves personally. And हम देख रहे हैं कि ये होल्ड ही नहीं होते हैं कोर्ट में. अगर एक आध केस में कन्विक्शन हो जाता है, अपील के स्टेज पे they get overturned. So we are very sure that these cases won't stand in court क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कोई दम ही नहीं है इन मामलों में. अगर आप स्क्रूटनाइज करेंगे, एविडेंस जब वहां पे एग्जामिन होगा, क्रॉस होगा, उस टाइम पे आप जिनको खड़ा करते हैं, जिनके बेसिस पे आप ट्रम्प अप करके इन मैटर्स को फाइल करते हैं, दे डोंट टेक द मैटर एनीवेयर एंड दे रिजल्ट इन दीज एक्विटल्स. सो वी नो फॉर अ फैक्ट that it is not, again, like I reiterate, it's not the right of common people that it is trying to protect. Colin sir is my senior, and I am still at the stage where I'm optimistic about our courts.
I'm optimistic about our polity. I don't want to cede that space. I know the systems are failing, but I don't want to cede that space. I think here we are as a collective group, as people who can think, not just to cry or not just to mourn about the situation that is not too good. I think किसी को उसके लिए context देने की ज़रूरत नहीं है. Everybody knows about it. But we are here to think what can we do about it. And I think as a lawyer, the courtroom, the space around the court is the space that I need to advocate at, or I need to be fighting at. And we have fought these trials. In one of those trials, and मैं आपके लिए थोड़े से आपके encouragement के लिए एक मैटर को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. बरेली में एक ट्रायल हुआ और ये काफ़ी वाइड स्प्रेड कवरेज इसका हुआ, न्यूज़पेपर्स में आया. बरेली में एक क्रिश्चियन हस्बैंड, मैन एंड वाइफ, दे हैड गॉन टू द हाउस ऑफ अ पर्सन टू प्रे. एंड वहाँ पे वो दुआ कर रहे थे और उस टाइम पे वहाँ पे कुछ ग्रुप्स आ गए और बोला कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है. उनके साथ थोड़ी बदसलूकी की और उनको लेके गए, उन पे केस दर्ज कर दिया. दे वेंट टू जेल, द मैन वेंट टू जेल, द वाइफ वाज लेट ऑफ. उसकी वजह से उनकी जो अच्छी खासी नौकरी थी, दे वर्कड एज नर्सेस इन अ हॉस्पिटल, उनकी अच्छी खासी जो नौकरी थी वो उनसे छूट गई. एक फास्ट ट्रैक ट्रायल हुआ 1-1.5 साल में उस मैटर में, और उसके बाद में द कोर्ट वॉज एबल टू सी थ्रू द अब्सर्डिटी ऑफ द केस. इसमें कुछ था ही नहीं, वो कहाँ वो खड़ा हो पाए वो मैटर. और एट द एंड ऑफ द डे द कोर्ट वॉज सो कन्विंस्ड दैट यू नो व्हाट इट ऑर्डर्ड. कोर्ट ने ये बोला, सीनियर पुलिस ऑफिशियल को डायरेक्ट किया कि आप लीगल एक्शन लेंगे आईओ के खिलाफ, आप लीगल एक्शन लेंगे एसएचओ के खिलाफ, और जो कंप्लेनेंट थे और जो विटनेसेस थे जिन्होंने बयान दिया था उनके खिलाफ भी आप लीगल एक्शन लेंगे. और अक्यूज जो थे, जो विक्टिम्स थे इस मामले में, जो क्रिश्चियंस थे, उनको ये बोला कि आप चाहिए तो डेफेमेशन का मुद्दा भी डाल सकते हैं, मुकदमा भी डाल सकते हैं इनके खिलाफ. सो आवर कोर्ट्स कैन डू एंड एक्ट एंड प्रोटेक्ट दोज राइट्स विच आर, जो हमारे संविधानिक अधिकारों में आते हैं. और जो कानून कई बार ये जो लॉज हैं जो उसके एंटीथेटिकली जो उसके पोजिशनड हैं, उसके खिलाफ कोर्ट्स कैन रियली टेक अ स्टैंड. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी असर्ट आवर राइट. It is very important that at each juncture in systems, even though the systems may be collapsing, at each juncture we are able to use those rights really well. I come back to the question again, whose right is it trying to protect? हमने ये देखा है जब भी ये कानून आते हैं उस टाइम पे उसके आसपास बहुत स्ट्रांग एडवोकेसी होती है. वो असेंबली में हो सकती है जहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, नहीं तो ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे होता है कि हम धर्मांतरण का कानून लाएंगे, ऐसे ऐसे चीजें करेंगे. आई वाज शॉक्ड, दिल्ली में उत्तराखंड गवर्नमेंट के प्रमोशनल एक्टिविटीज के पार्ट में, आई डोंट नो, साकेत मॉल के सामने तो मैंने देखा था, और कहाँ कहाँ था ये पता नहीं. वहाँ पे ऐसा एक बहुत बड़ा बैनर था और वहाँ पे ये लिखा था, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट वी ब्रॉट द एंटी कन्वर्जन लॉ इन उत्तराखंड. हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए हैं. Our understanding of what is good, or what is beneficial for the people, or what does good governance mean, or how should a government should be measured and understood, वो भी change हो रहा है. And it was there for everyone to see. And because I used to work on those laws, and मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से वो misapply हो रहा है या misuse हो रहा है, every time I read it, I did not see an achievement. I saw a government failing its people. I saw the courts failing its people. Whose right is it trying to protect and who is it trying to punish? पिछले एक साल में हम लोग कितने जिन मुकदमों में हम लोग इन्वॉल्व थे, क्लोज टू 600 ईसाई जेल में गए हैं इस कानून के अंदर. मैं सिर्फ ईसाइयों का आंकड़ा आपको बता सकता हूं क्योंकि मैं उन मैटरों में डील करता हूं. क्लोज टू 600, उसमें से 450 जुडिशियल कस्टडी में गए हैं. 150 के आसपास जो हैं वो डिटेन्ड होते हैं, थोड़े टाइम के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, बट इसी कानून के नाम से उनको लाया जाता है वहाँ पे. दीज आर इंडिविजुअल्स. इसमें महिलाएं हैं, इसमें बच्चे भी हैं. कई ऐसे लोग थे जिनके पास उनको अपने बच्चों को सौंप के जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई घर नहीं था, तो वो बच्चों को लेके जेल गए. बच्चे भी रह के आए 1.5 महीना, क्योंकि वो ईसाई हैं और वो एलिजली फोर्सफुल धर्मांतरण में इन्वॉल्व हैं. Who is it trying to punish? For whose benefit? For whose freedom of religion are these laws there?
इस कानून का ना एक बहुत चिलिंग इफेक्ट है। जहाँ जहाँ ये 12 स्टेट्स में किसी ने मेंशन किया, 12 स्टेट्स में एक कानून है, कुछ जगहों पे एक्टिवली जो भी पार्टी वहाँ पे जो कैंपेनिंग करती है उनके मैनिफेस्टोज का पार्ट है कि हम लोग इस कानून को अपने राज्यों में लाना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे कहते हैं कि इस कानून को हम लोग लाएंगे। ये कानून हो ना हो, अगर उसके अंदर आप मुकदमा में आप लाए जाते हैं, नहीं लाए जाते हैं, तब भी इसका एक चिलिंग इफेक्ट पड़ता है। यस सर, इसका एक चिलिंग इफेक्ट पड़ता है। I know for a fact that many churches, places of worship in Uttar Pradesh, in many parts of the country have shut down, क्योंकि उनको डर है, उनको नहीं पता इस संडे अगर हम लोग चर्च खोलेंगे तो कौन वहां पे आएगा। लोगों को प्रार्थना करने में डर हो रहा है। फॉर अ लैंड ऑफ फेथ, आस्था जहां पे बहुत ऊंचा रखा जाता है, जहां पे हमारे विश्वास, हमारा धर्म, ऐसे मूल्य जो बहुत ऊंचे स्थान पे हम लोग रखते हैं, ऐसे देश में लोगों को अपने प्रभु पे, अपने परमेश्वर का नाम लेकर प्रेयर करने में, प्रार्थना करने में उनको डर लग रहा है हमारे देश में। दैट इज द काइंड ऑफ एनवायरमेंट दैट वी आर इन। बट देन वी आर ऑल्सो इन एन एनवायरमेंट वेर आई सी यही लोग स्ट्रांगली इन कानूनों के खिलाफ खड़े होते हुए भी। मे बी आई विल जस्ट क्लोज विद दैट। मैं जानता हूँ एक पास्टर हैं, वो 8 महीने इस कानून में जेल में थे। वो ऐसे ही संडे को एक चर्च चला रहे थे, लीड कर रहे थे, और उस टाइम पे एक मॉब आती है, पुलिस भी उनके साथ में थी। आने के बाद में उनको जनरल मोडस ऑपरेंडी ये होता है, सवाल करने से पहले 4 थप्पड़ मारते हैं। इनको भी ऐसा ही किया, मारा। उसके बाद में उनको बोला कि हम इसके अंदर आपको बुक कर रहे हैं, और उसके बाद उनको लेके चले गए। 8 महीने तक उनको जमानत नहीं मिली। लोअर कोर्ट ने नहीं दिया। कई बार लोअर कोर्ट्स टच नहीं करते हैं ऐसे मैटर को, वो पास कर देते हैं कि हायर कोर्ट डिसाइड करेगा, एंड इट्स पास्ड ऑन टू द हाई कोर्ट। दैट पर्सन वाज इन जेल फॉर 8 months अंडर अ वेरी absurd एलिगेशन। उसके बाद हमारा उनसे मिलना हुआ, तो हमने पूछा कि आपने कैसे मैनेज किया। यू नो, वेरी एविडेंटली सो, कभी भी उन्होंने थाना एक देखा नहीं था। एक पुलिस वाले को, शायद वर्दी वाले को दूर से देखा होगा, उसके अलावा कभी डायरेक्टली डील नहीं किया होगा। हाउ डिड यू डील एंड मैनेज ऑल ऑफ दिस? एंड उनका रिस्पॉन्स ये था कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग एंड आई हैव नॉट फेल्ट एनी फियर एट ऑल। जस्ट टू एको जो हम लोग यहाँ सुन रहे थे, I think we need to have that spirit where there is an absence of fear. It is our democracy. These are our courts. These are our systems, which we should not be willing to cede. And at every point of a violation, everything within our power, we should be able to do so that we are trying to take some step towards addressing it. And keep doing that consistently, time and again, in our capacities, in the roles that we are all in. Thank you everyone for a patient hearing.